اسٹوری مارکیٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی چار بے وقوف بھائی۔ ایک آدمی کے چار بیٹے تھے۔ اس نے ایک گھوڑا بھی پال رکھا تھا۔ جب وہ آدمی مر گیا تو اس کے بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ گھوڑے کو کاٹ کر ان میں سے گھوڑے کا ایک ایک پاؤں لے لیں، لیکن اختلاف یہ تھا کہ باقی جسم کو کس طرح بانٹا جائے۔ اس اثناء میں ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے ان سے پوچھا کہ بھائیو، آپ میں کس بات پر اختلاف ہے؟ مجھے بتا دو، ہو سکتا ہے میں مسئلے کا حل کرنے کی کوئی راہ نکال لوں۔ ان میں سے ایک بولا کہ اس گھوڑے کو برابر برابر کس طرح بانٹیں؟ اس شخص نے کہا کہ اس گھوڑے کو فروخت کر کے رقم آپس میں بانٹ لو۔ چاروں بھائی رضامند ہو گئے اور گھوڑے کو فروخت کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ سفر کے دوران ایک جنگل میں رات ہو گئی۔ چاروں بھائی دن بھر کے تھکے ماندے تھے، انہیں نیند آ گئی۔ جب وہ گہری نیند سوئے ہوئے تھے تو رات کے کسی پہر ایک چور وہاں آ نکلا۔ اس نے دیکھا کہ چار آدمی خراٹے بھر رہے ہیں تو وہ آہستہ سے گھوڑے کو بھگا کر لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بھائی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ گھوڑا غائب ہے۔ جلدی سے اس نے دوسرے بھائی کو جگایا اور بتایا کہ گھوڑا چوری ہو گیا ہے۔ ایک بھائی نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا، سو جاؤ، رمضان خان لے گیا ہوگا، صبح اس سے لے لیں گے۔ صبح چاروں روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے اونٹ کے پاؤں کے نشانات دیکھے تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ اونٹ کے پاؤں کے نشانات ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ بھائی یہ کسی نر اونٹ کے نشان ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ بھائی یہ اونٹ ایک آنکھ سے اندھا بھی ہے۔ آگے بڑھے، ابھی کچھ دور ہی گئے ہوں گے کہ انہوں نے دیکھا ایک شخص پریشان حالت میں آ رہا ہے۔ اس نے ان سے پوچھا، بھائی آپ لوگوں نے یہاں کوئی اونٹ تو نہیں دیکھا ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا، نر اونٹ۔ دوسرے نے کہا، ایک آنکھ سے اندھا۔ تیسرے نے کہا، مہار کو تڑوا کر نکلا ہے۔ اس شخص نے کہا، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، اونٹ کہاں دیکھا ہے تم نے؟ اس پر انہوں نے بیک زبان کہا کہ ہم نے اونٹ نہیں دیکھا، تم آگے جا کر پتہ کرو۔ اس نے کہا، بھائیو، تمہارے پاس اونٹ کے متعلق اس قدر معلومات ہیں اور پھر بھی انکار کر رہے ہو، بھلا یہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ یقیناً تم ہی میرے اونٹ کے چور ہو۔ چلو بادشاہ کے حضور، وہ اس بارے میں فیصلہ کرے گا۔ چار بھائی اور پانچواں وہ اونٹ کا مالک بادشاہ کے دربار کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے انسان کے پاؤں کے نشانات نظر آئے۔ چاروں بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ عورت کے پاؤں کے نشانات ہیں۔ دوسرے نے کہا، یہ گھر سے ناراض ہو کر نکلی ہے۔ تیسرے نے کہا کہ بھائی یہ عورت حاملہ بھی ہے۔ باتیں کرتے ہوئے جب یہ آگے بڑھے تو ایک اور شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، راستے میں تم لوگوں نے کسی عورت کو تو نہیں دیکھا؟ ایک بھائی نے کہا، شاید ناراض ہو کر گھر سے نکلی۔ اس نے کہا، ہاں۔ دوسرے نے کہا، میرے خیال میں حاملہ ہے۔ اس نے کہا، بالکل درست کہہ رہے ہو۔ تیسرے نے کہا کہ عشاء کے وقت گھر سے بھاگی ہے۔ اس نے کہا، بالکل درست۔ پھر چاروں نے بیک زبان کہا، بھائی ہمیں تو نہیں معلوم، جاؤ کہیں اور تلاش کرو۔ اس نے کہا، تمہاری بات پر میں کیوں یقین کروں جبکہ پہلے تم لوگوں نے اس کے متعلق سب معلومات بالکل درست بہم پہنچائی اور اب کہہ رہے ہو کہ ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں۔ وہ عورت یقیناً تم لوگوں کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا، اگر تمہیں ہم لوگوں پر شک ہے اور ہماری بات کا تمہیں اعتبار نہیں تو ہمارے ساتھ تم بھی بادشاہ کے پاس چلو کہ وہ اس بارے میں کوئی فیصلہ کرے۔ چلتے چلتے وہ ایک شہر میں پہنچ گئے۔ ایک گلی میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا۔ پوچھا کہ رمضان خان کا گھر کہاں ہے؟ اسی وقت ایک گھر سے ایک شخص نکلا اور اس نے کہا کہ رمضان خان ہوں، کہو کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، کل رات تم ہمارے گھوڑے کو لے گئے تھے، وہ ہمیں واپس کر دو۔ اس نے کہا، تم لوگ پاگل ہو، احمق ہو، بھلا میں کیسے تمہارا گھوڑا لے گیا؟ انہوں نے کہا، اگر تمہیں انکار ہے تو چلو بادشاہ کے پاس، وہ خود فیصلہ کرے گا۔ اب یہ سب بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ بادشاہ نے پوچھا، تم لوگ کیوں آئے ہو؟ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم انصاف کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ پھر انہوں نے باری باری بادشاہ کو سب باتیں بتائیں۔ اونٹ کے مالک نے کہا، جناب،
इन लोगों ने पहले मेरे गुमशुदा ऊँट के मुतल्लिक सब मालूमात दुरुस्त बाहम पाई और फिर कहते हैं कि हमने उसे देखा तक नहीं। मेरे ऊँट को चुराने वाले यकीनन यही लोग हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। दूसरे ने कहा कि मेरी बीवी रात को घर से निकली है। इन लोगों ने उसके मुतल्लिक बिल्कुल सही मालूमात बाहम पहुँचाई और साथ ही कहते हैं हमने उसे देखा तक नहीं। मेरी बीवी को अगवा करने वाले यही चारों हैं और कोई नहीं हो सकता। बादशाह ने उन चारों से पूछा कि तुम क्या कहना चाहते हो? उन्होंने जवाब दिया कि हजूर पहले हमारी अर्जात सुने। रात को रमज़ान खान ने हमारा घोड़ा चुरा लिया है। रमज़ान खान ने कहा आलिजा, मुझे इसके मुतल्लिक बिल्कुल इल्म नहीं है, मुझे ये लोग नाहक पकड़ कर लाए हैं। बादशाह ने उनसे पूछा जिस वक्त रमज़ान खान घोड़ा चोरी करके ले जा रहा था तुम में से किसने उसको देखा? उन्होंने कहा हजूर, हम में से किसी ने उसको देखा नहीं। फिर बादशाह ने कहा जब तुमने उसको देखा तक नहीं तो उसको क्यों इल्ज़ाम ठहरा रहे हो, और ये दूसरे जो तुम अपने मुकदमों में मुल्ज़िम ठहरा रहे हैं, इसकी सफाई में भी तुम कुछ कहना चाहते हो? उन चारों ने कहा कि हजूर, ये लोग हम पर तुहमत लगा रहे हैं, हम मुजरिम नहीं हैं, दरअसल हम इल्म गैब जानते हैं, हमें सब कुछ इस इल्म के ज़रिए मालूम हो जाता है। बादशाह ने कहा मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता हूँ, आया वाकई तुम लोग इल्म गैब जानते हो? उसके लिए किसी एक चीज़ के अंदर एक दूसरी चीज़ छुपा कर रखूँगा। अगर तुम लोगों ने ठीक ठीक बता दिया तो मैं समझूंगा कि वाकई तुम इल्म गैब जानते हो और बेकसूर हो। फिर बादशाह ने एक अनार मंगवाया और उसको एक संदूक में बंद करके उनसे पूछा कि बताओ संदूक के अंदर क्या चीज़ है? वो एक दूसरे का मुंह तकने लगे। बड़े भाई ने कहा कि कोई गोल गोल सी चीज़ है। दूसरे भाई ने कहा उसके सर पर कोई गेंदनुमा चीज़ है। तीसरे ने कहा कि उसके बीच में दाने दाने हैं। चौथे ने कहा कह क्यों नहीं देते कि संदूक में अनार है। जब बादशाह को यकीन हो गया कि वो सच कहते हैं और गैब का इल्म जानते हैं, चनाचे उसने रमज़ान खान से कहा कि उनका घोड़ा वापस कर दो या उसकी कीमत अदा करो, और दूसरों से कहा कि तुम जाकर अपना ऊँट और अपनी बीवी तलाश करो, क्योंकि ये लोग वाकई इल्म गैब जानते हैं। रमज़ान खान से घोड़े की कीमत वसूल करके उन्होंने उस रकम से भेड़ बकरियां खरीदी और अपने गांव की तरफ रवाना हुए। दोपहर के वक्त वो एक जंगल में पहुंचे। ये लोग थक कर चूर चूर हो गए थे, इसलिए सो गए थे। थोड़ी देर बाद जब एक भाई की आंख खुली तो देखा कि एक लेला यानी भेड़ का बच्चा एक छोटे से दरख्त पर चढ़ा हुआ है और भेड़ें जुगाली कर रही हैं। उसने अपने भाइयों से कहा कि चुपके से उठो। उन्होंने पूछा क्यों? उसने कहा कि बकरियां डंडे तोड़ रही हैं और भेड़ें हमें मारने के लिए आपस में सलाह मशवरा कर रही हैं। चारों भाई वहां से भाग निकले और भेड़ बकरियां को उन्होंने वहीं छोड़ दिया। एक लेला उनके पीछे पीछे भागने लगा तो एक ने पत्थर उठाकर उसको दे मारा और कहने लगा भाइयों, एक को तो मैंने मार दिया है, अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग निकलो। जब ये बहुत देर तक भागते रहे, इतने में एक घोड़सवार वहाँ से गुजरा। उसने उनसे दरियाफ्त किया कि क्यों भाग रहे हो? उन्होंने बयाक ज़बान कहा कि हमारी बकरियां डंडे तोड़ रही थीं और भेड़ें आपस में मारने के लिए सलाह मशवरा कर रही थीं। अब ज़रा देखो, हम सब पूरे ही नहीं हैं। ये कहकर चौथे भाई ने गिनना शुरू किया तो अपने आप को शुमार करना भूल गया। हम तो 3 हैं, हमारा चौथा भाई गुम हो गया है। दूसरे भाई ने कहा कि ठहरो, मैं गिनता हूँ। फिर उसने गिनना शुरू किया, ये 1, ये 2 और ये 3। हम में से वाकई चौथा गैब है। और इसी तरह बारी बारी चारों ने गिनती शुरू की और हर एक ने अपने आप को शुमार नहीं किया और यही समझते रहे कि चौथा भाई कहीं गुम हो गया है। घुड़सवार ने कहा कि अगर मैं तुम लोगों की गिनती पूरी कर दूं तो उन्होंने कहा कि फिर हम सब आपके ग़ुलाम बन जाएंगे, जहां आप हमें ले जाएंगे हम आपके साथ जाएंगे। घुड़सवार ने पहले एक भाई के हाथ को पकड़ा और उसको एक तरफ करके कहने लगा ये 1, फिर दूसरे का हाथ पकड़ा और कहा ये 2। वो इसी तरह गिनता गया और चारों की गिनती पूरी हो गई। उस पर चारों खुश हो गए और कहने लगे हम आज से आपके ग़ुलाम हैं।
घुड़सवार ने कहा कि अब मेरे साथ चलो कि तुम्हारी भेड़ बकरियों से तुम्हारा राजीनामा करा दूं। ये सब उस तरफ जा रहे थे तो रास्ते में वो लेला नजर आया जिसको उन्होंने मारा था। उन्होंने उस शख्स को बताया कि यही वो लेला है जिसे हमने मार दिया था। उसके बाद जब भेड़ बकरियों के करीब गया और उनमें से हर एक के सर पर थपकी दी, फिर उन भाइयों से मुखातिब होकर कहने लगा कि अब भेड़ बकरियां तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। उसके बाद उन्हें कहा कि आओ तुम भी मेरे साथ चलो। घुड़सवार भेड़ बकरियों को लेकर अपने घर पहुंचा। चारों भाई पहले ही उसकी गुलामी कबूल कर चुके थे, वो भी उसके साथ आ गए। उसने उनमें से एक से कहा तुम रेवड़ चराने जाओ, दूसरे से कहा तुम बैलों के इस जोड़े के लिए घास काट कर लाओ और इनको खिलाओ, तीसरे से कहा कि तुम मेरी माँ का ख्याल रखो, ये बीमार है, तुम ख्याल रखना कहीं मक्खियाँ इसके मुंह के अंदर न जाएं, और जब मेरी माँ को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो दे देना। चौथे से कहा कि तुम गंदम की फसल की कटाई करके एक जगह सलीके से रखना। मुख्तलिफ काम उन चारों के सपुर्द करके खुद अपने कारोबार में मसरूफ़ हो गया। जिस भाई के ज़िम्मे मक्खी उड़ाने का काम था वो डंडा लेके बैठ गया। जब घुड़सवार की माँ पर कोई मक्खी बैठती तो वो उसे डंडे से मारता। बेचारी चीखती चिल्लाती। 3-4 डंडे लगने के बाद वो अधमुई हो गई और फिर दम तोड़ गई। जब वो बिल्कुल साख्त हो गई तो उसने सोचा कि अब वो आराम कर रही है, लिहाजा उस पर चादर डाल दी जाए, और ख़ुद एक तरफ होकर बैठ गया। जिस भाई की ड्यूटी बैलों को चारा खिलाने पर लगाई गई थी, उसने अपने दिल में सोचा मुझसे इस कदर काम नहीं हो सकता, लिहाजा उसने फ़ौरन दोनों बैलों को ज़िबा करके उनके मुंह भूसे में गाड़ दिए कि अब खुद खाते रहें। गंदम की फसल पर जिस भाई की ड्यूटी थी, उसने सोचा कि ये बहुत बड़ा और मेहनत तलब काम है, क्यों ना हो इनको दानों को भुना हुआ गंदम बनाया जाए। ये सोचा और उसने गंदम की फसल को आग लगा दी। अब चौथे भाई का वाक़या सुने जो भेड़ों को ले गया था। वो भेड़ें चरा रहा था कि अचानक 1-2 भेड़िए उधर आ निकले और भेड़ों को खाने लगे। उसने सोचा कि इस गांव के कुत्ते कैसे भूखे हैं जो भेड़ों को खाते हैं, इनके मालिक इनको कुछ नहीं देते। वो भेड़ों को वहीं छोड़कर खुद वापस लौट आया। दोपहर को जब घुड़सवार पहुंचा तो पहले भाई से पूछा मेरी माँ की अच्छी तरह खिदमत की है? उसने कहा जनाब क्या पूछते हैं, जब से आप गए हैं उसी वक्त से वो आराम कर रही हैं। जब उसने चादर उठाई तो देखा माँ का चेहरा खून आलूद है और वो मर गई है। उसने उस भाई का काम देखा तो परेशान हुआ। उसने सोचा कि जल्दी से दूसरे भाइयों की खबर लेनी चाहिए कि उन्होंने क्या गुल खिलाया है। जब उसने बैल वाले से पूछा तुमने क्या किया है, तो उसने कहा कि अभी तक बैलों के मुंह भूसे में हैं। जब देखा तो उसके सर कटे हुए हैं और भूसे में घुसे हुए हैं। उसके बाद उसने फसल वाले से पूछा कि क्या तुमने फसल की कटाई कर दी? उसने खुशी खुशी बताया कि मुझे ख्याल आया आपकी माँ बूढ़ी है, भला रोटी कहाँ पका सकेगी, इसलिए मैंने भुनी हुई गंदम तैयार कर ली है। जब घुड़सवार ने देखा गंदम की खुशबू को जला हुआ पाया। चौथे से उसने पूछा कि भेड़ बकरियां कहाँ हैं, तो उसने कहा इस शहर के कुत्ते बेहद भूखे हैं, आज तक ऐसे भूखे कुत्ते मैंने नहीं देखे। वो आकर बकरियों को खाने लगे। मैंने उन पर तरस खाया और उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका। घुड़सवार ने सबकी बातें सुनी तो सर पीट लिया और फिर चारों को तलब करके उसने कहा तुम लोगों ने मुझे इस कदर नुकसान पहुंचाया है कि जिन्हें मेरी आइंदा नस्लें भी याद रखेंगी। तुम लोगों ने मेरी माँ को हलाक, मेरे कारोबार को तबाह कर दिया, मगर खैर मैं इस दफ़ा तुम्हें माफ़ करता हूँ। अब तुम ऐसा करो, बेलचा गिनती लेकर कब्रिस्तान चले जाओ, वहाँ एक ऐसी कब्र तैयार करो जिसकी लंबाई कान के बराबर हो। चारों भाई कब्र खोदने के लिए कब्रिस्तान रवाना हुए। एक ने गिनती मारी और दूसरे ने अपना कान वहाँ रखा और कहने लगा कि ये कब्र तो बड़ी बन गई है। गर्ज ये कि बाकी भाई भी कान रखते गए और इसी तरह कहते गए कि कब्र कान से बड़ी बन गई है। उन्होंने सोचा कि घुड़सवार पहले ही बिगड़ा हुआ है, अगर कब्र बड़ी बन गई तो वो और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। ये सोचकर वो वापस हुए। जब घर पहुँचे घुड़सवार हैरान हुआ कि ये लोग इस कदर जल्दी वापस आ गए हैं।
उसने उनसे पूछा कि तुमने कब्र खोदी भी है या वैसे ही वापस आ गए हो? तो उन्होंने कहा कि जनाब ये कोई मुश्किल काम तो नहीं था, हम कब्र खोद आए हैं। उसने कहा कि इसमें काफ़ी वक्त लगता है, मालूम नहीं तुम लोगों ने कैसे जल्दी कब्र खोद डाली। फिर उसने कहा कि चलो मुझे दिखाओ। जब कब्रिस्तान में पहुँचे तो कब्र ढूंढने लगे, मगर अब वो जगह नज़र नहीं आ रही थी। अपनी दानिस्त में वो कब्र खोद गए थे। वो जगह क्या नज़र आती जब एक ही गिनती उन्होंने मारी थी। कब्र खोदी होती तो उसकी मट्टी यकीनन दूर ही से नज़र आ जाती। कब्र ढूंढते काफ़ी वक्त लग गया। बिल आखिर उन्हें वो जगह मिल गई। तब उन्होंने उस शख्स से कहा कि यहाँ आइए, ये वही कब्र है। उसने जब देखा तो कहा कि तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया, इसमें इंसान की लाश भला कहाँ आ सकती है। फिर बोला तुम लोग जाकर मेरी माँ की लाश ले आओ, खुद उसके लिए कब्र खोदूंगा। वो चारों गए और मुर्दे को चारपाई पर रखकर दौड़ते हुए कब्रिस्तान की तरफ आए, मगर रास्ते में मुर्दा माँ उनसे कहीं गिर गई। कब्रिस्तान पहुंचकर जब उन्होंने चारपाई रखी तो एक दूसरे के मुंह तकने लगे। घुड़सवार ने पूछा कि लाश ले आए हो? उन्होंने जवाब दिया कि जनाब हम उसे ला रहे थे कि वो रास्ते में कहीं भाग गई है, क्योंकि अब यहाँ पहुंचकर हमने जो देखा है तो चारपाई खाली है। उसने कहा यह कैसे मुमकिन है कि मुर्दा भाग जाए। फिर उनसे गुस्से में कहा जाओ मेरी माँ को जिस तरह भी हो लेकर आओ, वरना तुम सबको मैं यहाँ जिंदा गाड़ दूंगा। वो मुर्दा लेने जा रहे थे। रास्ते में एक बुढ़िया नज़र आई जो लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी। उन्होंने उसे कहा कि तुम यहाँ लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही हो, उधर तुम्हारा बेटा तुम्हें ज़मीन में ज़िंदा गाड़ने की धमकी दे रहा है, चलो हमारे साथ। चारों ने उसको पकड़कर ज़बरदस्ती चारपाई पर लिटा दिया और कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए। औरत चीखती चिल्लाती रही, मगर उन्होंने उसकी एक न सुनी। जब कब्रिस्तान पहुँचे तो घुड़सवार से कहने लगे ये लो अपनी माँ, अब इसको संभालो, हम तो मुफ्त में बदनाम हो रहे थे, ये तो अभी भी नहीं आ रही थी, हम इसे ज़बरदस्ती पकड़ कर लाए हैं। उसने बुढ़िया से माजरत की, उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। इन लोगों ने मेरी मुर्दा माँ को कहीं गिरा दिया और उसकी जगह तुम्हें ले आए हैं। उसके बाद वो अपनी माँ की तलाश में निकला और उसकी लाश को कहीं से ढूंढ लाया। वो शख्स अब उन चारों से बहुत तंग आ चुका था, इसलिए उसने उन चारों को घर से निकाल दिया और ख़ुद सुख का सांस लिया। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई कहानी के साथ। खुदा हाफिज़।